اس پہ میں نے یوز نہیں کیا اسٹریم یارڈ کو. یہاں دکھائی تو کوئی نہیں دے رہا. ہاں کوئی ایسا آپشن نہیں نظر آ رہا مجھے. اور یہ ڈاکٹر جعفری صاحب جو ہیں ان کا تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا افتخار احمد ثاقب، اردو لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل سے آپ کے لیے یہ خاص پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں بہت ہی ہمارے آج خاص مہمان ہیں، بہت ہی معروف اور مشہور شعراء ہمارے ساتھ ہیں اور بہترین کلام آپ کو سننے کو ملے گا. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بے شمار اس طرح کے پروگرامز ہم کر چکے ہیں، اور نہ صرف ادبی اردو لٹریچر اینڈ کلچر جو ہے نہ صرف ادبی پروگرام کرتا ہے بلکہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے پاکستان میں خیراتی اور چیریٹی کا کام بھی ایک ٹرسٹ امت الحفیظ ٹرسٹ کے نام سے کر رہی ہے. تو آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب ناظرین کی دلچسپی کی وجہ سے ہمارا یہ چینل جو ہے یہ دن بدن مقبول ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، اور یہ نئے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آن لائن مشاعرہ ہوتا ہے اس میں داد کس طریقے سے دیتے ہیں، کیونکہ شعراء کے لیے داد جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس میں آن لائن مشاعرے میں آپ کمنٹس دے کر یا لائکس کر کے آپ جو ہے نا اس کو داد دے سکتے ہیں. تو اب میں تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور میں ایک دفعہ پہلے اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا ذکر کر دوں مختصراً، پھر اس کے بعد ان کا فردن تعارف بھی تفصیلی کرایا جائے گا. تو ہمارے ساتھ آج جو مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں بہت ہی عظیم شخصیت ہیں اور بہت بڑے اسکالر اور مشہور و معروف جو ہیں وہ شاعر ہیں اور نثر نگار ہیں، اور کہہ لیں کہ بہت کچھ ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بے شک کی ہیں. محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر مقصود جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ ان کی بہت مہربانی نوازش ہے کہ وہ اتنی مصروفیت کے باوجود ہمارے ساتھ انہوں نے شرکت کی، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ کینیڈا سے محترمہ نصیر سعید صاحبہ اور ہمارے ساتھ شرکت فرما رہی ہیں مہمان خصوصی کے طور پر. ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ان کو خوش آمدید کہ یہ تشریف لائیں اور ہمیں ایسا شرکت فرمائی. اور انڈیا سے ہمارے ساتھ محترم جناب ریاض ساغر صاحب اور بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور ان کی بھی بہت بہت نوازش کی ہوئی شرکت فرمائی، اور آپ کو بھی بہت خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست جو ہیں اور بہت بڑے رائٹر ہیں اور ادیب ہیں اور ترجمہ نگار ہیں اور بہت کچھ ہے، اور یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جناب محترم نصر ملک صاحب. ان کو بھی بہت خوش آمدید کہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور ایک ہمارے دوست جو پاکستان سے محترم امین اوڈرائی تھے وہ بھی شامل نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، تو وہ بھی امید ہے کہ جلدی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اب میں تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ ارباب عقل و بصیرت جو زندگی کی ہر ساعت اور ہر گوشے میں وحی کی رہنمائی کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اور کائنات کی گہرائیوں اور بلندیوں پر بھی غور و فکر کرتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جو بھی میں آج یہ شو یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے یا شاعری کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ میری والدہ محترمہ جو ہیں انہوں نے مجھے اپنی گود سے یہ مجھے علامہ اقبال کی نظمیں سنانی شروع کی تھی، اور ان کو پوری بال جبریل ضرب کلیم ساری زبانی یاد تھیں. تذکرۃ الاولیاء ان کو ساری زبانی آتی تھیں. وہ سارے قصے بچپن سے مجھے گود میں لے کے سناتی رہی ہیں، بڑے ہو کے سناتی رہی ہیں. شاید ان کا یہ اثر ہے کہ وہ ابھی تک جو اب ہم اس شاعری کی طرف میں راغب ہوا ہوں. تو آپ صدر محترم کی اجازت سے میں چاہتا ہوں اب ایک نظم ماں کے لیے
मैं पेश कर दूं, फिर उसके बाद जी आगे जी इरशाद, जी जी इरशाद। जी। तो ये नज़म है, इस नज़म का उन्वान है माँ कभी नहीं मरती। वाह बेशक। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ का साया खुदा की रहमत है। वाह माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का साया खुदा की रहमत है। और गोद माँ की अगर मुयस्सर है, गोद माँ की अगर मुयस्सर है, जिंदगी पुरसुकून है, बेहतर है। आहा, जिंदगी पुरसुकून है, बेहतर है। और बेशक। माँ के दम से बहार गुलशन है, बहुत माँ अच्छा के बिस्मिल्लाह। दम से बहार वाह गुलशन है। तो घर के अंदर महकता आंगन है, वाह घर के वाह, अंदर महकता आंगन है। और बहुत अच्छा जब शेर है। तलक पास है करो खिदमत, जब तलक पास है करो खिदमत, दिल में रह जाए ना कहीं हसरत, आहा, दिल में रह जाए ना कहीं हसरत। और बहुत माँ की बातें हैं रोशनी दिल की, वाह माँ की बातें हैं रोशनी दिल की, उसके खून से है जिंदगी दिल की, वाह 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 खून से है जिंदगी दिल की। वो वाह हर वाह, समय रहती है ख्यालों में, ठीक हर समय रहती है ख्यालों ख्यालों में। में। और माँ की खुशबू बसी है सांसों में, माँ आहा, की खुशबू बसी है सांसों में। और वाह आखिरी शेर है कि माँ की हस्ती है जावेदां हस्ती, माँ की वाह हस्ती है जावेदां हस्ती। दोस्तों माँ कभी नहीं मरती, वाह 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 वाह, बेशक दोस्तों बेशक। माँ कभी बहुत नहीं मरती। बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया आपका। अब बहुत मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरम डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब से इजाज़त लेते हुए मैं चलूँगा डेनमार्क और अपने प्यारे दोस्त मोहतरम नसर मलिक साहब से। और मैं देख भी रहा हूँ कुछ वो कहना भी चाह रहे हैं, और अपना हम चाहते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत नज़में जो लिखती हैं उनमें से नज़में सुनाएं। इनका मैं ये बता दूं कि इन्होंने बेशुमार किताबें जो हैं उनका अपना डैनिश किताबों के तर्जुमे जो हैं उर्दू में किए हैं, और इस तरीके से और बहुत तसनीफ़ गांधी के ऊपर एक किताब तस्नीफ़ फरमाई है, और इनको बहुत सारी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया में बुलाया जाता है। बहुत इनका माश इतना तवील है, अगर मैं तारफ़ कराने बैठूँ इनका तो बहुत पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मुख्तसर बस मैं ये करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर वो कुछ फरमाना चाहते हैं हम उर्दू लिटरेचर के बारे में या और फिर उसके बाद कोई नज़म हमें इनायत करें तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। जी जनाब नसर मलिक साहब। बहुत मेहरबानी जनाब राना इफ्तिखार साहब। मेरी सोच है कि मैं आया नहीं लाया गया हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, लाने वाले को दाद। और वो इस वजह से है कि काफ़ी अरसे से ये तकाजा था अपने इफ्तिखार भाई का कि मैं भी शामिल हूँ, वरना मैं मुशायरे का तो शायर हूँ ही नहीं। मैं नज़म लिखता हूँ, और वो भी जिसे आप नसरी नज़म कहते हैं या आज़ाद नज़म कहते हैं, और लिखता हूँ। मेरे मजमूआ कलाम है 2-3 उसमें। लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं जिनका आपने जिक्र किया डेनमार्क के हवाले से, डेनमार्क और उर्दू का ताल्लुक जो है वो कमोबेश 265 साल पुराना है। और ये एक बड़ी तज्जुब-अमेज़ बात होती है जब ये कोई सुनता है कि 265 साल पुराना ताल्लुक कैसे हो गया। तो वो यूँ है कि ज़माने कदीम में डेनमार्क की आज के हिंदुस्तान में जो रियासत है तमिलनाडु, वहाँ एक कॉलोनी होती थी जिसका नाम है ट्रंकेबार। रियाज भाई जानते होंगे। और कलकत्ता से 265 किलोमीटर के फासले पर शुमाल जनूब में जो पहला हिंदुस्तानी छापाखाना लगा था वो डेनमार्क ही से ले जाया गया था। लीचो प्रिंटिंग प्रेस थी। और वहाँ पर जो सबसे पहली उर्दू दुनिया में जो उर्दू की दूसरी ग्रामर शाया हुई वो बिन्यामिन शुल्स ने शाया की थी, जो डेनमार्क से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके अलावा साइंसेस जो थे उन्होंने तौरात, अंजील मुक़द्दस के कई अबवाब, यूहन्ना के खतूत, सलमान की बादशाहत, ये वगैरह उर्दू में शाया किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी ज़माने में दुनिया की 10 ज़ुबानों की गिनती और रोज़मर्रा बोलचाल के मुहावरे या जुमले कैसे एक दूसरे से रब्ता पैदा किया जाए, वो किताब यहाँ डेनमार्क से शाया हुई, जिसमें उस वक़्त की आप कह सकते हैं
हिंदुस्तानी या आज की उर्दू जुबान भी शामिल थी। और 265 साल के बाद बेंजामिन शुल्स ने जो ग्रामर और लुगत का सिलसिला शुरू किया था, उसे हमने 2 साल पहले मेरी अहलिया और मैंने इस सूरत में ताज़ा कर दिया, उसकी तजदीद कर दी। ये डैनिश उर्दू लुगत है। इसमें 15,000 के अल्फाज हैं और उन उर्दू अल्फाज के मुतरादिफ भी दिए गए। वाह, बड़ा काम। एक और बड़ी खूबसूरत बात है डेनमार्क के हवाले से कि महात्मा गांधी जी डेनमार्क की एक लड़की से, जिसे उन्होंने अपनी बेटी बना रखा था, बहुत प्यार करते थे और अपने खतूत में उसे माय डियर चाइल्ड के नाम से लिखते थे। मैंने उनके खतूत जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, 183 खतूत हैं और उनका तर्जुमा ये किया है ये इस किताब की सूरत में जी। और इसका नाम है अपनी लाडली बच्ची के नाम महात्मा गांधी के मोहब्बत नामे। वाह वाह। ये खतूत जो है उस वक़्त की हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दन, सकाफत, रहन सहन, रस्म व रवाज और मियाँ बीवी और दोस्तों के साथ तल्लुकात, इन पर ऐसी तफसीलन रोशनी डालते हैं कि ये बड़ी अजीब लगता है कि महात्मा अपनी मुँह बोली बेटी को ज़िंदगी इस्तवार करने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए किस किस्म के खतूत लिखते थे और क्या करते थे जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि महात्मा गांधी के पड़पोते जो हैं उन्होंने इस पर अखबार हिंदू में बहुत अच्छा अंग्रेजी जुबान में मजमून, एक मेरे अजीज़ हैं उन्होंने लिखा और उस पर उन्होंने तबसरा किया। बहरहाल ये सारी बहुत लंबी बात है और मुझे आप इस तरह बड़ा करने की बजाय बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं अब आपके दरमियान रहना चाहता हूँ। हाँ, ये ठीक है। जी, दरमियान में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है आपका। बड़ा अच्छा you introduce the book। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। Of course। जी। एक नज़म जी इनायत करें, की जरूरत करता हूँ जी। वाह मकसूद साहब और सभी मैं जो चाहूँगा, मेरा बाप मुझसे एक कदम पीछे था। नज़म का उन्वान है कातिल। माशाल्लाह। मेरा बाप मुझसे एक कदम पीछे था, मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे होगा। बहुत अच्छे, जनरेशन आगे निकल गया। वाह। मेरा बाप मुझसे एक कदम पीछे था, मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे होगा। मेरे बाप ने नेज़े, भालों और तलवारों से जंगें लड़ी थी। मैंने हिरोशिमा, नागासाकी और वियतनाम में अपनी एटमी इजादात का सिक्का बैठाना चाहा। मेरा बेटा शायद स्टार वार के जरिए अपनी कुव्वत का लोहा मनवाएगा। क्या कहने। लेकिन हम तीनों बाप, बेटे और पोते में एक कदरे मुशरक है, हम धरती पर खुद ही अपने कातिल हैं। क्या बात, क्या कहने। बहुत अच्छा अलमिया है ये। मुख्तसर सी नज़म है, इसका उन्वान है प्रेम नगर। जी प्रेम नगर। नसरीन अल-सुहैल की किताब है अमन की देवी। जी उसके आखिरी पेज पर ये नज़म दर्ज है। अच्छा, आता हो जी। तो उन्वान है प्रेम नगर। जी। मेरा पीछा करने वालों और मेरी घात में रहने वालों, जिस दिन मुझको कत्ल करोगे, मेरी जेब में तुमको मिलेगा एक टिकट प्रेम नगर। एक टिकट? क्या कहना है? प्रेम नगर का। वाह। अमन का, शहर ज़मीरे इंसान का, देखो जाया टिकट न करना, तुम भी इस पर सफर तो करना। बहुत। फिर से पढ़िए ये आखिरी लाइनें। मेरा पीछा करने वालों, मेरी घात में रहने वालों, जिस दिन मुझको कत्ल करोगे, मेरी जेब में तुमको मिलेगा एक टिकट प्रेम नगर का। प्रेम नगर गहवारा अमन का, शहर ज़मीरे इंसान का, देखो जाया टिकट न करना, इस पे तुम भी सफर तो करना।
अगर इजाजत दें तो एक और नज़म पेश छोटी छोटी तो नज़में हैं आपकी, बहुत जी जी बिल्कुल। ये है, इसका उन्वान है हजरत इंसान। हजरत इंसान जनाब मकसूद साहब, हजरत इंसान। अरबा को मोहनजोदड़ो सदियों से भी सदियों पहले तहजीब और तमद्दन के ये ठिकाने और इन ठिकानों से संगो वहशत और गिरदो खाक के उठते हुए भगोले और हवा में बुए खून इंसान बता रही है मुझे अरूज इंसान के जवाल की दास्तां। इंसान के जवाल की दास्तां और तहजीब के इन खंडरात के वस्त में, और तहजीब के इन खंडरात के वस्त में सदियों से भी सदियों पुराने एक मंदिर के खंडर के कोने में गौतम की रूह सिसकियां ले रही है। क्या बात, गौतम की रूह सिसकियां ले रही है और कह रही है हजरत इंसान तुम फिर आ गए हो। बहुत अच्छे, वाह, क्या कहने साहब, बड़े क्या खूबसूरत नज़्म है। वाह वाह। आखिरी नज़्म आपकी समातों की नजर करता हूँ और उसके बाद नसरीन सुनिएगा गौर से। उन्वान है मुमलकत खुदादाद। खानकाहों में उल्लुओं के घोंसले, खानकाहों में उल्लुओं के घोंसले, मस्जिदों की छतों की मडेरों पर कौवों की रागनियां, माबद खाने रस्सागिरों, डाकुओं, कातलों के पनाह घर, खुदा के घर। क्या खूबसूरत इस्तारे भी इस्तेमाल किए माशाल्लाह। रस्सागिरों, डाकुओं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुदा के घर, खुदा को उसके घर से निकाल करके कितने खुश हैं। रस्सागीर, डाकू, कातल, खानकाहों में बसेरा करने वाले उल्लू और मस्जिदों की खैरात में रोटियों पर झपटने वाले कौवे। क्या खूबसूरत सच्चाइयां आपने। उल्लुओं, रस्सागीरों, कातलों और कौवों की अमाजगाह है मुमलकत खुदादाद। खुदा तो खुद अब वहाँ नहीं है। क्या कहने ऐसा ही है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब जी। वाह, कितने खूबसूरत नज़्में आपने माशाल्लाह। साकिब साहब खूबसूरत जी। इकबाल ने कहा, आजकल इकबाल का भी मामला चल रहा है ना, परवाज़ है दोनों की इसी एक फजा में, करकस का जहां और है। बेशक फरमाया जहां जहां शाहीन होने चाहिए थे वहां करकस उल्लू बैठे हुए। बेशक आपने इकबाल का तज़किरा किया तो उसमें सैयद ज़मीर जाफरी साहब का एक शेर याद आ गया है, अर्ज कीजिए देता हूं। फरमाते हैं हम साल में 2 बार मजलिस इकबाल करते हैं, बाकी सब कुछ कमाल करते हैं और इसके बाद बाकी सब कमाल करते हैं। और यही हाल है। वाह, क्या बात है, जबरदस्ती नसर महक साहब, वाह क्या कहने। तो अब आगे मैं चाहता हूँ कि अभी इंडिया की तरफ चलूँ, इसके बाद प्रोग्राम को आगे लेते हुए, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं रियाज सागर साहब की तरफ बढ़ूँ, तो मैं अगर सदर मोहतरम इजाजत दें तो मैं एक गजल के चंद अशार पहले बिस्मिल्लाह साकिब साहब। शुक्रिया। तो अर्ज करता हूँ कि दूर कोने में सिसकती जिंदगी है। दूर कोने में सिसकती जिंदगी है, गम के डर से हाथ मलती एक खुशी। दूर कोने में सिसकती जिंदगी है, गम के डर से हाथ मलती एक खुशी है, और जो अभी साये के काबिल ही नहीं है, जो अभी साये के काबिल ही नहीं है, उस शजर को धूप मुड़ कर देखती है। क्या शुक्रिया। जो अभी साये के काबिल ही नहीं है, उस शजर को धूप मुड़ कर देखती है। शुक्रिया शुक्रिया। और सोया सोया जब कहीं से चांद निकला, सोया सोया जब कहीं से चांद निकला,
रात भर फिर रात की सीना जनी है, यहीं से चांद निकला, रात भर फिर रात की सीना जनी है, और आमदे अहदे खिजा में गम ज़दासी, आमदे अहदे खिजा में गम ज़दासी, एक बुलबुल हाथ मलती जा रही है। एक बुलबुल हाथ मलती जा रही है। जी शुक्रिया, शुक्रिया। खिजा में गम ज़दासी, एक बुलबुल हाथ मलती जा रही है, और एक नशा है मौज दरिया का तबस्सुम, एक नशा है मौज दरिया का तबस्सुम, और एक किश्ती पानियों में डोलती है। और किश्ती पानियों में डोलती है, और दीदनी है बादलों की झंझनाहट, दीदनी है बादलों की झंझनाहट, दीदनी है बादलों की झंझनाहट, और हवा मस्ती की लय पर गा रही है, और हवा मस्ती की लय पर गा रही है। दीदनी है बादलों की झंझनाहट, और हवा मस्ती की लय पर गा रही है, और एक थकी सी मौज आई जो किनारे, मौज आई जो किनारे, एक थकी सी मौज आई जो किनारे, पहलू में साहिल के आकर सो गई है। वाह वाह, क्या कहना है, साहिल के वाक़े सो गई। बहुत खूब। आपने उर्दू अदब का शाबे साकिब का खिताब दिया है तो उसको निभाना तो है। बहुत अच्छा। आपको मैंने आपका दिमाचा लिखा। आगे पहलू में अब ये आप बताएंगे कि निभाया है कि साकिब, यस मीटियोर, ऑफ कोर्स। एक थकी सी मौज आई जो किनारे, पहलू में साहिल के आकर सो गई है। शुक्रिया। और मक्ता पेशे खिदमत है कि इतनी हैरत से ना देखो इसको साकिब, इतनी हैरत से ना देखो इसको साकिब, बहुत खूब। ढलते सूरज के तो दिल में आजिज़ी है। वाह वाह, क्या कहना है, बहुत खूब। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इतनी हैरत से ना देखो इसको साकिब, ढलते सूरज के तो दिल में आजिज़ी है, और दूर में सी सकती जिंदगी है, गम के डर से हाथ मलती एक खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश। और अब मैं चलता हूँ मोहतरम रियाज सागर साहब इंडिया से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनका जो तारफ़ है, जो ये तारफ़ इनका काफ़ी तवील है, बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, और इनका जो ये मैं थोड़ा मुख्तसर सा अर्ज़ कर देता हूँ कि ये असल में बैंक में जॉब करते हैं, जो कि बहुत ही खुश सा महकमा है, लेकिन इसके बावजूद जो इनकी शायरी है उसमें आपको तमाम नाजुक एहसासात मिलेंगे, और उसमें जो है ये जो में काम करने वालों ने हमें बड़े बड़े अजीब और शायर दिए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी की दर्शनों को जी ये इस तरीके से आप अल्फाज के पैकेट खजाने लूट रहे हैं। तो इनका ठहरे ताल्लुक था इंडिया कौन से मुजफ्फरनगर से है जो, और बस और इनके जो बहुत बेशुमार इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो बस इनकी महल टाइम की किल्लत की वजह से इतना तवील तारुफ मैं इनका नहीं करवा सकता। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ इनसे गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब रियाज सागर साहब के शुक्रिया के साथ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, और उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम हमारी समातों की वक्त से अगर 1 मिनट मैं ले लूं। जी 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 मालूम है और मैं जानता हूँ जी जी साहब की इस अहद में, जी जी अहद पुरअशूब में जी जी बच्चों के अदब के लिए जो खिदमत हैं वो बड़ी ग्रां कदर है। जी जी अफसोस हमारे सभी बुजुर्ग जो बच्चों का अदब पढ़कर आज बड़े बड़े फन्ने खान बने बैठे हैं, उनको इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए सिवाय आईफोन के हम क्या छोड़े जा रहे हैं।
भेजा फरमाया। जी जी बिल्कुल। तो रियाज साहब आपकी इन काविशों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम, मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि आज आपकी बावकार सदारत में मुझे मुशायरा पढ़ने का मौका मिल रहा है, और आपकी शख्सियत, आपकी जो अजीम और बाकमाल शख्सियत है वो माशाल्लाह पूरी उर्दू दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी शख्सियत, आपकी शायरी, आपके अदबी कारनामों पर हम सबको फख्र है, और आपकी इजाजत से ही मैं 4 मिसरे आपकी नजर करना चाहता हूँ कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। ये डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब की शख्सियत है। हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। थोड़ी सी तरमीम की चौखट नहीं करते। बहुत और 4 मिसरे से अपने सफर का आगाज करता हूँ कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। इस कते में भी आपको डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब की शख्सियत नजर आएगी कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं, और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। अभी साकिब साहब ने माँ का जिक्र किया तो मुझे भी अपनी माँ याद आ गई। मेरे वालिद साहब का बचपन में इंतकाल हो गया था जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरी वालिदा ने मुझे बड़ा हौसला दिया, और जब वो जिंदा थी मैं उस वक्त भी कहता था, बड़ी मुसीबतें आई कि मैं जिंदगी की धूप से डरता नहीं कभी। ये शेर मुलाजा करें, मेरी माँ को खराबी अकीदत, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं जिंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, मैं जिंदगी की धूप से डरता नहीं कभी, रहता हूँ अपनी माँ की मोहब्बत की छाँव में। और एक शेर और इसी पस मंजर में मुलाजा करें कि मेरे सर पर है मेरी माँ की दुआ का साहिबा, आज भी उनके इंतकाल के बाद भी मेरे सर पर है मेरी माँ की दुआ का साहिबा, ये मुझे गम की तमाज़त से बचा ले जाएगा। मेरे सर पर है मेरी माँ की दुआ का साहिबा, ये मुझे गम की तमाज़त से बचा ले जाएगा। और इसी गजल का एक शेर और याद आ गया कि दोस्त बनकर उम्र भर जिसने दिया मुझको फरेब, दोस्त बनकर उम्र भर जिसने दिया मुझको फरेब, दोस्त बनकर उम्र भर जिसने दिया मुझको फरेब, वो अगर दुश्मन भी बन जाए तो क्या ले जाएगा। दोस्त बनकर उम्र भर जिसने दिया मुझको फरेब, वो अगर दुश्मन भी बन जाए तो क्या ले जाएगा। और एक गजल का मतलब चंद अशार मुलाहिजा करें कि कोई शिकवा कोई फरियाद न लब पर होना, कोई शिकवा कोई फरियाद न लब पर होना, एक करिश्मा है फकीरी में कलंदर होना। बहुत शुक्रिया। कोई शिकवा कोई फरियाद न लब पर होना, एक करिश्मा है फकीरी में कलंदर होना, और सर्द रातों में भी फुटपाथ पे बिस्तर होना। सर्द रातों में भी फुटपाथ पे बिस्तर होना, सर्द रातों में भी फुटपाथ पे बिस्तर होना, कितना जासूस है इंसान का बेघर। सर्द रातों में भी फुटपाथ पे बिस्तर होना, कितना जासूस है इंसान का बेघर होना। अब ये शेर बतौर खास मुलाजा करें
हमारे मुल्क के पूरे हालात इसमें आ जाएंगे। हमारी कौम का अलमिया है कि कतरा बनकर यहाँ सूरज से डरोगे कब तक, डरोगे कब तक, कतरा बनकर यहाँ सूरज से डरोगे कब तक, डरोगे कब तक, आओ हम तुमको सिखाते हैं समंदर होना। कतरा बनकर यहाँ सूरज से डरोगे कब तक, आओ हम तुमको सिखाते हैं समंदर होना। और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है कि मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। बात अच्छी, अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। और सदर मोहतरम आप इजाजत दें तो एक गजल जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको भेजी थी, मैंने तो इसलाह के लिए भेजी थी, इन्होंने तारीफ करके लिख दी उसको। अभी तक मैंने किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी वो गजल, लेकिन सदर मोहतरम की पसंदीदा गजल है इसलिए सुनाता हूँ। इसमें मेरे मुल्क के हालात भी हैं और हमारी अपना भी अलमिया है कि मौसमे गुल में भी हर समत खजा छाई है, मौसमे गुल में भी हर समत खजा छाई है, कैसे कह दूं कि गुलिस्तान में बहार आई है। मौसमे गुल में भी, बहुत शुक्रिया नवाजिश, मौसमे गुल में भी हर समत खजा छाई है, कैसे कह दूं कि गुलिस्तान में बहार आई है। और ये शेर बतौर खास मुलाजा करें, पूरा हिंदुस्तान में जो आजकल हालात चल रहे हैं, अव्वल तो पूरी दुनिया का यही हाल है कि बागबां नोच रहा है यहाँ कलियों के बदन, बागबां नोच रहा है यहाँ कलियों के बदन, बागबां नोच रहा है यहाँ कलियों के बदन, फूल है सहमे हुए हर कली मुरझाई है, बागबां नोच रहा है यहाँ कलियों के बदन, फूल है सहमे हुए हर कली मुरझाई है, और मार डाले ना कहीं तल्ख नवाई हमको, मार डाले ना कहीं तल्ख नवाई हमको, मार डाले ना कहीं तल्ख नवाई हमको, हमने सच बोलते रहने की कसम खाई है, मार डाले ना कहीं तल्ख नवाई हमको, हमने सच बोलते रहने की कसम खाई है। और ये शेर भी बतौर खास मुलाजा करें कि जुल्म और जब्र के ऐवान लरज उठे हैं, जुल्म और जब्र के ऐवान लरज उठे हैं, जुल्म और जब्र के ऐवान लरज उठे हैं, आह मजलूम की जब अर्श से टकराई है। और एक अभी एक अलमिया हो गया था, मेरे एक दोस्त थे आईजी साहब, उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनका इंतकाल हो गया, बीवी जो है अस्पताल में भर्ती है और बेटा अमेरिका में था, एक ही बेटा था। अब पता नहीं, ये गजल में कह रहा था और एक शेर हो गया। इस शेर को कहने के बाद मैं बहुत रोया कि जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, बाप ने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई है, जिसको पाला था बड़े नाज से वो छोड़ गया, बाप ने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई है। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, ये शेर मेरा पसंदीदा शेर है कि सिर्फ एहसास नदामत था मेरी आंखों में, सिर्फ एहसास नदामत था मेरी आंखों में, सिर्फ एहसास नदामत था मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई है, एहसास नदामत था मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई है, और मार डाले न कहीं तल्ख नवाई हमको, हमने सच बोलते रहने की कसम खाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया नवाजिश। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत माशाल्लाह कलाम अनायत किया है सागर साहब ने। इससे और भी मैं चाहता हूँ कि और गज़ल सुने। एक मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मौजूद नाज़रीन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें दाद भी दे रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दाद हमें मिल रही है शहनाज मिन्हाज साहिबा से और आमिर सईद साहब से और क्या अफजाल गौहर राव साहिब से और आमिर सुहेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आसफ कलवी हमारे साथ हैं
और इस तरह और मुश्ताक साहब को हमारा खुसूसी सलाम पहुंचा दें अगर वो सुन रहे हैं तो। कौन? आमिर सुहेल जी, उनको अभी आप सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो आमिर सुहेल साहब भी और आमिर सईद साहब भी हैं और मुश्ताक अहमद साहब भी देख रहे हैं। तो माशाल्लाह इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया हमें दाद देने का। और मैं एक बार फिर तमाम नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो मुशायरा पेश किया जा रहा है ये उर्दू कल्चर एंड इंटरनेशनल के थ्रू पेश किया जा रहा है। और इसमें हमारे साथ शुआरा शामिल हैं और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब सदारत फरमा रहे हैं और मोहतरम नसर मर्ग साहब डेनमार्क से हमारे साथ शरीक हैं और मोहतरमा नसीर सईद साहब कनाडा से हमारे साथ हैं और मोहतरम रियाज सागर साहब जो हैं हमारे साथ इंडिया से शामिल हैं। तो अब फिर दोबारा से गुजारिश करूंगा कि एक और गज़ल अनायत फरमाएं मोहतरम जनाब रियाज सागर साहब। जी, सदर मोहतरम की इजाजत हो जरूर इनायत करूंगा, वो हाजिर करूंगा। नहीं इनायत कीजिए। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मेरे बेटे की दुल्हन जो है चाय इनायत कर गई तो इनायत की जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मजे हैं, वाह वाह, खुशनसीबी है, क्या बात है। असल में डॉक्टर साहब को मैं गजलें अपनी भेजता रहता हूँ, इनकी गजलें मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो एक बहुत पुरानी गजल मैंने कही थी अहमद फराज साहब की जमीन में, माशाल्लाह। जी जी जी, अब बड़ी जुदत की थी और अगर आप हजरात की दुआएं मिली तो मैं इसे कहीं पढ़ भी दूंगा। तो ये तो नशीश से एक तरीके से सभी लोग सीनियर लोग बैठे हैं तो मशवरा भी हो जाता है और अपनी शेरों की दाद मिलती है तो ये लगता है कि वाकई हमें एजाज मिल गया। तो मतलब मुलाहिजा करें कि जुनून में आज चलो ये भी करके देखते हैं, चलो ये भी करके देखते हैं। इस गजल में मेरी जिंदगी है, मैंने जो 36 साल बैंक में नौकरी की है वो भी तमाम चीजें इसमें आ जाएंगी। एक तरीके से ये समझिए कि मेरी जिंदगी की गजल है। बहुत लोगों ने मेरी मुखालफतें भी की हैं, बहुत मेरी टांग पकड़ के भी खींची है, सबके साथ होता है। तो सुनिए, जुनून में आज चलो ये भी करके देखते हैं। और ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बड़ी उन्हीं की जमीन में कहा है मैंने, भाई ये जमीन मुझे पसंद आ रही थी, मैं मुशायरों की निजामत में अक्सर उनके शेर पढ़ता था। तो एक दिन दिल में आया कि लाओ इसी बहर में गजल कहता हूँ। और बहुत अच्छे। गजल से पहले बताऊं मैं आपको कि मैं अल्लाह का शुक्र है बैंक की नौकरी में भी स्टार परफॉर्मर रहा हूँ। मैंने सारे टारगेट जिंदगी में पूरे किए हैं, तो वो सब मेरे इसमें आएगा गजल में। मैंने अहमद फराज की सिर्फ जमीन में शेर कहा है, बाकी कोई मजमून उनका नहीं है। जुनून में आज चलो ये भी करके देखते हैं, जुनून में आज चलो ये भी करके देखते हैं, सुलगते दश्त से हम भी गुजर के देखते हैं। क्या आज चलो ये भी करके देखते हैं, सुलगते दश्त से हम भी गुजर के देखते हैं और हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का। ये मेरी जिंदगी है। हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का, हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का, न पेचो खम न मसाइब सफर के देखते हैं। क्या कहने हमारी नजरों में रहता है अक्स मंजिल का, न पेचो खम न मसाइब सफर के देखते हैं और मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को, मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को ये चांद तारे जमीन पर उतर के देखते हैं। क्या कहने ये मेरी जिंदगी है। मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को ये चांद तारे जमीन से देखते हैं और अब आसमान की बुलंदी पे नजर आती। ये शेर अब आसमान की बुलंदी पे है नजर अपनी, अब आसमान की बुलंदी पे है नजर अपनी, से देखता है। दोबारा से पेश करेंगे, नायब करेंगे, आवाज थोड़ी खराब होगी, आवाज ठीक नहीं आई। अब सही बुलंदी पे है नजर अपनी, अब आसमान की बुलंदी पे है नजर अपनी, अब आसमान की बुलंदी पे है नजर अपनी, चलो मुकाबला सूरज से करके देखते हैं, चलो मुकाबला सूरज से करके देखते हैं। अब आसमान की बुलंदी पे है नजर अपनी,
चलो मुकाबला सूरज से करके देखते हैं। और ये शेर उन्हीं लोगों के लिए है जो माशाल्लाह जो मेरी टांग पकड़ के खींचते थे कि वो मेरे अज़्म की परवाज़ से नहीं वाकिफ, अज़्म की परवाज़ से नहीं वाकिफ, वो मेरे अज़्म की परवाज़ से नहीं वाकिफ, वो मेरे अज़्म की परवाज़ से नहीं वाकिफ, जो कैंचियों से मेरे पर कतर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। वो मेरे अज़्म की परवाज़ से नहीं वाकिफ, जो कैंचियों से मेरे पर कतर के देखते हैं। और ये शेर बतौर खास सदर मोहतरम, देखिए ये तो मेरी जिंदगी के शेर थे, ये मेरा मुल्क और मेरी कौम आ गई। और ये दो शेर अलग है इस सीक्वेंस से हटके। मुलाज़ा फरमाए नसरीन सैयद साहिबा, आपको भी पसंद आएगा ये शेर कि बाहर आई है कैसी अब के गुलशन में, बाहर आई है कैसी अब के गुलशन में, बाहर आई है कैसी अब के गुलशन में, हम अपने बाग के फूलों को डर के देखते हैं। बाहर आई है कैसी अब के गुलशन में, हम अपने बाग के फूलों को डर के देखते हैं। और एक खालिस गजल का शेर भी इसमें हो गया कि बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई, बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई, बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई, तुम्हारा जिक्र हवाओं से करके देखते हैं। बहुत दिनों से नई खुशबुएं नहीं आई, तुम्हारा जिक्र हवाओं से करके देखते हैं। और मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को ये चांद तारे जमीन पर उतर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश, आप हज़रात को बहुत मोहब्बतों से नवाजा, ज़मीन का हक अदा कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। तो नसर भाई, इससे पहले कि हम कनाडा की तरफ चलें तो आप कुछ, मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं जी, मैंने तो जो कहना था वो कह चुका, लेकिन कहने को और भी बहुत कुछ है। अच्छा हुआ कि फरमाइए फरमाइए। वरना तो वो है कि हम मुंह में जुबान रखते हैं। लेकिन रियाज सागर साहब की शायरी सुनने के बाद और उनकी गजल, और ये मालूम नहीं ये किसने कहा था कि ये अहमद फराज की बड़ी मकबूल गजल है, और हालांकि रियाज साहब ने सबसे पहले कह दिया था कि मैंने ये गजल जो है ये अहमद फराज की जमीन पर लिखी है। जी जी जी। आजकल हम देखते हैं कि गालिब की जमीनों पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जी मालूम नहीं था कि वो इतनी जमीन छोड़ गया है। खुद तो मफलूक हाल ही रहा बेचारा। उसकी जमीनों पर काश्त करने वालों ने खूब कमाया। लेकिन रियाज भाई बहुत खुशी हुई, अल्लाह आपको सलामत रखे और यकीन की बहुत नवाजिश। हाँ आज, और नसरीन आपका कलाम और फेसबुक पर मैं कुछ कुछ देखता रहता हूँ, लेकिन आज आपको बिल मुशाफा सुनेंगे तो इंशाल्लाह और भी मजा आएगा। जी 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 नाजरीन, ये जो है हम अब चलते हैं मोहतरमा नसरीन सईद साहब की तरफ, जो कनाडा से हमारे साथ शिरकत फरमाई है। इन्होंने ये 30-35 सालों से शायरी फरमा रही हैं और इनके जो है 6 मजमूए जो है अब तक छप चुके हैं, और आने और कितने हैं ये नहीं पता हमें। तो इनकी जो एक गजलियात का जो है वो तेरे ख्याल की खुशबू, और फिर तरंग और दनक, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम रखे हैं आपने, और दिल दरिया और महराब नूर, ये हमदो नात की ये किताब है। जी जी जी। और फिर मिलहार जो है ये भी गजलियात है। और माशाल्लाह से इतने सालों से ये कनाडा में गालिब एकेडमी को चला रही हैं, उनकी ये मुंतजिम है माशाल्लाह। तो इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे साथ ये शरीक हुई और हमें इनको सुनने का मौका मिल रहा है अभी। तो बहुत बहुत एहतराम और अदब के साथ आपसे गुजारिश है मोहतरमा नसरीन सईद साहबा कि हमें अपना कलाम अनायत करें। जनाब मोहतरम, बेहद शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर मुबारकबाद भी और बहुत दाद भी। बड़े बड़े नाम स्क्रीन पे मौजूद हैं, तो मैं जसारत कर रही हूँ साहिब सदर की इजाजत से। अता करें जी डॉक्टर साहब इजाजत है। डॉक्टर साहब साकिन हो गए हैं क्या? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब का हैंग हो गया?
हैंग हो गया है, हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ लग तो यही रहा है। हरकत नहीं हो रही। 1 मिनट इंतजार कर लीजिए, बुला लीजिए उनको। जी आवाज दें जरा, पुकारें उनको शायद। डॉक्टर साहब, सदर मोहतरम, अगर इंटरनेट हैंग हो गया तो फिर जाहिर है हमारी आवाज भी नहीं उनको जा रही होगी, आई गेस। ना तो बिल्कुल साकिब हो गए जी। तो महल वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो इनको मैं अभी अब बिल्कुल ही गायब हो गए। नहीं शायद निकाला है इन्होंने। जी जी अब आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? ये हो जाता है, टेक्नोलॉजी का यही जी मसला है। ये तो हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट का तो जी। अब जी डॉक्टर साहब कुछ जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अभी आए। मतलब आ रही आवाज आपको? जी आ रही है आपकी, मुझे आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी अच्छा अच्छा अरे अच्छा, डॉक्टर साहब भी आ गए। चलिए चलिए, उनको अगर आवाज जा रही है तो फिर ठीक है। आगे दोनों आगे। मोहतरमा साहब आपसे इजाजत चाहती हैं। जी जी डॉक्टर साहब इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मतलब पेश कर रही हूँ। किसने कहा था इश्क का बारे गरा उठा? वाह वाह, इश्क का क्या बात है। किसने कहा था? इतना ही शेर है। कहा था इश्क का बारे गरा उठा। आगाज है अभी से ना शोरे फुगा उठा। वाह, क्या कह रहे हैं। वाह वाह वाह, कमाल का मतलब। आगाज है, जिंदाबाद। किसने कहा था इश्क का बारे गरा उठा? वाह, आगाज है अभी से ना शोरे फुगा उठा। बहुत खूब। और जंजीर खुल गई है तो मंजिल की ले खबर। जंजीर खुल गई है, जंजीर खुल गई है तो मंजिल की ले खबर। इसने सफर मिला है तो अब बादबा उठा। क्या कहना। इसने सफर मिला है, इसने सफर मिला है तो अब बादबा उठा। और आदाब बांधे थे मुझ पे गैर ने बुहतान जो भी दोस्त। बांधे थे मुझ पे गैर ने बुहतान जो भी दोस्त, मेरी गवाही के लिए तू भी कहाँ उठा। क्या कहना है। वाह वाह, मेरे गवाही के लिए क्या तरतीब से शेर का है माशाल्लाह। बांधे थे मुझ पे गैर ने बुहतान जो भी दोस्त, मेरी गवाही के लिए तू भी कहाँ उठा। और पहले के दर्द और थे गिरिया की तान और। ठीक, बहुत खूब। क्या पहले के दर्द और थे गिरिया की तान और। पहले के दर्द और थे गिरिया की तान और, ये रंज है नया नई तर्ज़े फुगा उठा। वाह वाह, क्या कहते वाह। ये रंज है नया नई तर्ज़े फुगा उठा। वाह वाह। और शेर पेश कर रही हूँ। हर एक पे तेरी नजरे करम खैर हो तेरी। वाह, ठीक, करम खैर हो तेरी। हर एक पे तेरी नजरे करम खैर हो तेरी, मेरे भी नाज हो के कभी मेहरबान उठा। क्या कहना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। हर एक पे तेरी नजरे करम खैर हो तेरी, मेरे भी नाज हो के कभी मेहरबान उठा। क्या कहना है। बहुत खूब। और बदले में एक निगाह के हाजिर हैं दिल जिगर। वाह, बदले में एक निगाह के हाजिर हैं दिल जिगर। बदले में एक निगाह के हाजिर हैं दिल जिगर, लुत्फो करम की दाद में ले नक़्द जां उठा। बहुत खूब। लुत्फो करम की दाद में ले नक़्द जां उठा। और महफिल से क्या उठा वो मेरा पैकर जमाल। वाह, महफिल क्या उठा वो मेरा पैकर जमाल।
ایسا لگا کہ بزم سے ایک گل ستا اٹھا. کیا کہنا ہے, واہ واہ, بہت زبردست. ایسا لگا کہ بزم سے ایک گل ستا اٹھا بہت خوب. اور اپنی انا کی دھوپ میں تھی مطمئن بہت. واہ, اپنی انا کی دھوپ میں تھی مطمئن بہت. اپنی انا کی دھوپ میں تھی مطمئن بہت. احسان کا اپنے سر سے میرے سائے باں اٹھا. واہ واہ, کیا کہنا ہے, بہت خوب. واہ واہ, اپنا سائے باں اپنی انا کی دھوپ میں تھی مطمئن بہت. احسان واہ. کا اپنے سر سے میرے سائے باں اٹھا. واہ, اور دونوں دلوں میں بیٹھ گیا شک جو بے طرح. واہ, دونوں دلوں میں بیٹھ گیا شک جو بے طرح. جو اعتبار دونوں کے تھا درمیاں اٹھا. واہ 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 واہ, اعتبار کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. دونوں کے جو اعتبار دونوں کے تھا درمیاں. سادہ کا رنگ بہت عمدہ. نم دیدہ چوب کیسے سلگتی ہے دیکھ لے. واہ, نم دیدہ چوب کیسے سلگتی ہے دیکھ لے. آ دیکھ جا جو دل سے ہے میرے دھواں اٹھا. کیا بات ہے, واہ واہ. دیکھ لو جو دل سے میرے ہے دھواں اٹھا. آ دیکھ جا جو دل سے ہے میرے دھواں اٹھا. اور دو پل کی زندگی تھی, آداب آداب, 2 پل کی زندگی تھی تماشا تمام شد. واہ, تماشا تمام شد. 2 پل کی زندگی تھی تماشا تمام شد. خرقہ سمیٹ بوریا عمر رواں اٹھا. واہ واہ, خرقہ سمیٹ بوریا عمر رواں اٹھا. اور کیا کیا نہ حز اٹھائے تھے فصل وصال میں. نسری ہے دور ہجر تو لطف زیاں اٹھا. کیا کیا نہ حز اٹھائے تھے فصل وصال میں. نسری ہے دور ہجر تو لطف زیاں اٹھا. بے حد شکریہ, آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خوبصورت جی, کیا خوبصورت مرثہ غزل تھی آپ کی. نصر بھائی, آپ سے میں پوچھنا تھا, یہ ٹی وی کی طرح ہمیں بھی اشتہار چلانا پڑے گا کہ سگریٹ نوشی. نصر صاحب شکر پڑے, شاعر ہیں, سگریٹ ہی پی رہے ہیں, ان کی موجودگی کے لیے ضروری ہے سگریٹ, ان کو تو نہیں کہہ سکتے کچھ. میرے پاس جہاں اپنے کیمرے کو, یہاں تک اپنی تصویر کو آف کرنے کا آپشن نہیں ہے, دکھائی نہیں دے رہا. ورنہ میں تو ہے نہیں, آپ آپشن نہیں, وہ آپشن نہیں آپ استعمال کر سکتے, آپ کو موجود رہنا ہے. نہیں ایسے نہیں کر سکتے آپ. ویڈیو بنا ہوا ہے چھوٹا سا نذہان, اس پہ آپ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو آف ہو جاتا ہے ویڈیو, لیکن نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو. کوئی بات نہیں, ویسے مذاق میں میں نے کہا ذرا, اور نصیر صاحب آپ سے بھی قطع کلامی میں نے کی. کوئی بات نہیں, ادھر اس کمرے سے آواز آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو آنی ہوئی تھی, وہ تو ضروری ہے, وہ تو بڑے سالوں سے آپ سن رہے ہیں آواز, وہ اس کو تو مسئلہ نہیں ہے. یہ تو سب سے بڑی جو رحمت ہے اور جو غنیمت ہے یہاں پر, وہ جناب مقصود جعفری صاحب کا یہاں موجود ہونا اس لیے بھی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اب میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں اپنے یہاں پر کہ اس طرح کے بزرگ اتنی شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کا خلوص ہے, آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. نصر بھائی, آپ نے بزرگ فرمایا ان کو, ان کی غزلیں آپ دیکھیں, ان کی بڑی جوانی والی غزلیں بھی بہت ہیں. دیکھیے تو جوان غزلیں کہتے ہیں, تو ہر نوجوان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف ہے, اور ہر بزرگ جو ہے
वो जवानी की बातें करता है। वो ये जवानी की बातें तो होनी चाहिए ना। ऐसे पीरी में हर एक बात वही होती है, इस करने की सही यही होती है। क्या बात, क्या बात। सरदार जी सुने ना, सरदार जी गुफ्तगू तो बाद में करेंगे। आपने कहा ना कि अकेडमी कायम कर रखी है, तो ये मेरे पास दीवाने गालिब का 1911 का मुतबा। थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, और ऊपर जी, अब नजर आया। जी जी जी। 1911 में आया हुआ था, और दिल्ली के जो गवर्नर थे उनके हाथ की तहरीर है यहाँ पर, माशाअल्लाह, ये उनके जेर मुताला रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अंग्रेज तो बड़ी खुशी हुई आपका ये सुन करके आप गालिब पर काम कर रही हैं वहाँ पर, और गालिब एकेडमी के नाम से आपने इदारा कायम कर रखा है। जी मोहतरमा, आप जारी रखिए अपना कलाम। अभी और सुनाइए आप। जी, एक और गजल पेश कर रही हूँ, मिलती जुलती सी है। जरा सा इश्क में पाया है इज़रार अभी, जरा सा इश्क में पाया है इज़रार अभी, अभी कहाँ ये रुलाएगा जार जार अभी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जरा सा इश्क में पाया है इज़रार अभी, अभी कहाँ ये रुलाएगा जार जार अभी। और अभी नहीं है तू मरकज मेरी तवज्जो का, मरकज मेरी तवज्जो का। अभी नहीं है, अभी नहीं है तू मरकज। जब वो आपकी तवज्जो का मरकज नहीं है तो फिर ज़्यादा रुलाएगा। अभी देखिए ना, देखिए अभी आगे देखिए। अभी नहीं है तू मरकज मेरी तवज्जो का, ना मुझको चाहने वालों में कर शुमार अभी। अभी नहीं है तू मरकज मेरी तवज्जो का, न मुझको चाहने वालों में कर शुमार अभी। और मिला है इज़्ने तकल्लुम अगर ख्याल रहे, मिला है इज़्ने तकल्लुम अगर ख्याल रहे। सुखन के बाब में बेहतर है इख्तिसार अभी, सुखन के बाब में बेहतर है इख्तिसार अभी। और ख्याले हिज्र ने क्या हाल कर दिया तेरा, ख्याले हिज्र ने क्या हाल कर दिया तेरा। अभी यही हूँ ना ऐसे मुझे पुकार अभी, अभी यही हूँ ना ऐसे मुझे पुकार अभी। रचाओ आदा, रचाओ और महक मुझ में ऊदो अंबर सी, रचाओ और महक मुझ में ऊदो अंबर सी। कि जिस्म जान को होना है मुश्क बहर अभी, कि जिस्म जान को होना है मुश्क बहर अभी। खुलेगा आदाब, खुलेगा तुम पे अभी रमज़े दिल मजीद मेरा, खुलेगा तुम पे अभी रमज़े दिल मजीद मेरा। है करना खुद को मुझे तुम पे आश्कार अभी, है करना खुद को मुझे तुम पे आश्कार अभी। और शेर है, मुझे भी अपनी सफाई में कुछ तो कहने दे, बड़ा सादा खूबसूरत, मुझे भी अपनी सफाई में कुछ तो कहने दे, मुझे भी अपनी सफाई में कुछ तो कहने दे। ठहर न मसनद दिल से मुझे उतार अभी। बहुत अच्छा शेर है, बड़ा जिंदा शेर है, बहुत नवाजिश। मुझे भी अपनी सफाई में कहने दे, ठहर न मसनद दिल से मुझे उतार अभी। फिर जरा सा अश्कों ने सैकल किया तो है, ठहरो
ذرا سا اشکوں نے سیکل کیا تو ہے، ٹھہرو کچھ اور ہونے دو، کچھ اور ہونے دو اس دل کو آبدار ابھی، کچھ اور ہونے دو اس دل کو آبدار ابھی۔ اور مقطع اس غزل کا پیش کر رہی ہوں۔ ابھی سے بیٹھ گئیں گننے زخم جان نسرین، ابھی سے بیٹھ گئیں گننے زخم جان نسرین، کہ دل نے رنج اٹھانے ہیں بے شمار ابھی، ابھی سے بیٹھ گئیں گننے زخم جان نسرین، کہ دل نے رنج اٹھانے ہیں بے شمار ابھی۔ جی، اور ایک اور غزل سے چند اشعار پیش کر دوں یا کافی ہے؟ اچھا جی، ذرا سا یہ ریاض صاحب نے ابھی ان کی فراز کی زمین میں پڑھی تھی، تو یہ تو خیر ان کی زمین نہیں ہے، لیکن ردیف آلموسٹ ملتی جلتی ہے، تو میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ پہلے سے۔ جوشی پرواز میں رفتار کہاں دیکھتے ہیں، پرواز میں رفتار کہاں دیکھتے ہیں، جوشی پرواز میں رفتار کہاں دیکھتے ہیں، ہم فلک ثابت و سیار کہاں دیکھتے ہیں، کیا کہنے، جوشی پرواز میں رفتار کہاں دیکھتے ہیں، ہم فلک ثابت و سیار کہاں دیکھتے ہیں، کیا کہنا۔ اور جب کریں عزم سفر رہتی ہے منزل پہ نظر، واہ کیا کہنا، جب کریں عزم سفر رہتی ہے منزل، جب کریں عزم سفر رہتی ہے منزل پہ نظر، یہ قدم راہ کی دیوار کہاں دیکھتے ہیں، یہ قدم راہ کی دیوار کہاں دیکھتے ہیں، بہت نوازش کریں، بالکل وہی مضمون آ گیا اس میں میرے شعر والا۔ جی جی جی، بڑے لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں، جی ہماری نظروں میں رہتا ہے منزل کا، نہ پیچو خم نہ مصائب سفر کے دیکھتے ہیں، بالکل 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 وہی مضمون آ گیا، ایگزیکٹلی بالکل۔ جب کریں عزم سفر رہتی ہے منزل پہ نظر، یہ قدم راہ کی دیوار کہاں دیکھتے ہیں۔ اور غزل کا شعر ہے، بے نیازی کی شکایت پہ جو کرتے ہیں گلا، بے نیازی کی شکایت پہ کرتے ہیں گلا، بے نیازی کی شکایت پہ جو کرتے ہیں گلا، وہ شکایت میں چھپا پیار کہاں دیکھتے ہیں، وہ شکایت میں چھپا پیار کہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھ تو لیں انہیں مانے ہیں مگر روب جمال، روب جمال کیا بات ہے، دیکھ تو لیں انہیں مانے مگر روب جمال، وہ کہ ہوتا نہیں دیدار کہاں دیکھتے ہیں، وہ کہ ہوتا نہیں دیدار کہاں دیکھتے ہیں۔ کیا کہنا۔ اور شعر ہے، خواب خرگوش میں ہیں جو ہیں بصیرت سے تہی، خواب خرگوش میں ہیں، خواب خرگوش میں ہیں جو ہیں بصیرت سے تہی، ہو بھی جائیں جو وہ بیدار کہاں دیکھتے ہیں، خواب خرگوش میں ہیں جو ہیں بصیرت سے تہی، ہو بھی جائیں جو وہ بیدار کہاں دیکھتے ہیں۔ اور غزل کا شعر ہے، پیش کر رہی ہوں، آنکھ رہتی ہے جھکی وقت تکلم ان کی، آنکھ رہتی ہے جھکی وقت تکلم ان کی، ہم بھی ان کو دم گفتار کہاں دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے جھکی وقت تکلم ان کی، ہم بھی ان کو دم گفتار کہاں دیکھتے ہیں۔
اور دید ہو جائے بھی ان کی جو سرے راہ تو ہم، دید ہو جائے بھی ان کی جو سرے راہ تو ہم، کب نظر بھر کے لگاتار کہاں دیکھتے ہیں، واہ واہ کیا کہنا ہے، کب نظر بھر کے لگاتار کہاں دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں، واہ واہ، اور طالب جن سے وفا ہیں جو خریدار یہاں، واہ طالب جن سے وفا ہیں جو خریدار یہاں، لاکھ ہو گرمی بازار کہاں لاکھ ہو گرمی بازار کہاں دیکھتے ہیں، اور نقطہ پیش کر رہی ہوں، چل نکلتے ہیں جو منزل کی طلب میں نسرین، واہ چل نکلتے ہیں جو منزل کی طلب میں نسرین، راستے کتنے ہیں دشوار کہاں دیکھتے ہیں، چل نکلتے ہیں جو منزل کی طلب میں نسرین، راستے کتنے ہیں دشوار کہاں دیکھتے ہیں۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت غزلیں اور بہت مرصع غزلیں آپ نے عنایت فرمائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، مقام ہے، بہت مقام ہے ان کا ماشاءاللہ۔ جی جی نہیں بے شک ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ کا، اور ذرا نواز اچھا لگا۔ اور اب ہم چلتے ہیں، اب بہت مشاعر اب کلائمیکس کی طرف ہے، اور اب جو ہے ہماری عظیم شخصیت جو ہمارے اندر موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پوسٹر میں سب کا لکھا کہ یہ نسیم سید صاحب کینیڈا سے ہیں اور وہ ریاض صاحب انڈیا سے ہیں، تو ان کا ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کا میں نے نہیں لکھا کہ کون سے ملک سے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا کے ہیں، پوری دنیا میں ہے، اور ان کا اس لیے میں نے نہیں لکھا کہ پاکستان سے ہیں یا نیو یارک سے ہیں کہاں سے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کا رہنے دیا کہ یہ عالمی شخصیت ہیں، اور ان کا تعارف تو بہت لمبا چوڑا ہے، بس مختصر دیتا ہوں کیونکہ ہماری جو نشریات ہیں اب 66 منٹ کی ہو چکی ہیں، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پروگرام کو آگے لے کر جائیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ مختصر تعارف ان کا یہ ہے کہ یہ آپ گورڈن کالج راولپنڈی میں انگریزی ادبیات کے پروفیسر رہے ہیں، اور آپ نے امریکہ سے لٹریچر میں پی ایچ ڈی اور فلسفہ میں ڈی فل کی ڈگری حاصل کی، اور امریکہ میں کئی یونیورسٹیوں میں یہ تقابلی عالمی ادبیات پر لیکچر بھی دے چکے ہیں، اور آپ اس وقت شاعری کی یا انگریزی، فارسی، اردو زبان میں شاعری اور فلسفہ، سیاسیات، اسلام اور علامہ اقبال اور کشمیر اور عالمی سیاسیات اور عالمی ادبیات پر تقریباً 32 کتابیں شائع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، اور علم و ادب کے علاوہ آپ نے سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے مشیر اور وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کے پولیٹیکل ریسرچ سیل کے انچارج بھی تھے اور مشیر بھی تھے، اور عالمی سطح پر جو ہیں وہ آپ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور بہت ہی ادب و احترام اور عزت کے ساتھ گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کہ وہ ہمیں اپنا کلام عنایت فرمائیں۔ بڑی مہربانی جناب رانا افتخار احمد ثاقب صاحب، جی قابل سے میں گفتگو کروں، مجھے بڑی اچھی لگی باتیں۔ جناب بہت بڑے دانشور ہیں، مترجم ہیں، مفکر ہیں، جناب محترم ناصر ملک صاحب ڈنمارک سے، تو انہوں نے ایک بات کی تو مجھے حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آیا، اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ ناصر صاحب یہ مجھے حافظ شیرازی کے، میں نے میری انگریزی کتابوں میں حافظ شیرازی پہ کچھ مقالے ہیں، اور مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں حافظ شیرازی کے وہاں شیراز میں بھی میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ نفس بعد صبا مشک فشاں خواہد شد۔ حافظ شیرازی، آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں جوانی کا۔ نفس بعد صبا مشک فشاں خواہد شد، عالم پیر دیگر بار جوان خواہد شد۔ بے شک بے شک، کیا کہنا۔ اچھا، کیونکہ علامہ اقبال کا ذکر ہے، ابھی پرسوں بھی میں
پاکستان ٹی وی کو انٹرویو دے رہا تھا اقبال پر، تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو اقبال یاد سے محبت رکھتے ہیں، بے شک بے شک، کہ 2-3 ماہ قبل اقبال اکیڈمی لاہور جو گورنمنٹ کا منسٹری آف کلچر کا ادارہ ہے، انہوں نے یہ کتاب دا میسج آف اقبال، یہ کتاب ابھی چھاپی ہے جی ہاں 2-3 مہینے پہلے، اور اس پہ یہاں اکیڈمی آف لیٹرز میں بہت بڑا فنکشن بھی ہوا جس میں بڑے بڑے دانشور، ممبر پارلیمنٹس، بہت اچھا ہوا۔ بہرحال اقبال پر تو کافی زندگی گزر گئی ہماری لکھتے پڑھتے، تو میں محترمہ نسرین سید صاحبہ کا تعلق ٹورنٹو سے مسیس ساگر سے ہے، مجھے میں کئی دفعہ وہاں حاضری دی ہے میں نے مشاعروں میں اور علمی ادبی محفلوں میں، خصوصاً اشفاق صاحب نے ایک دفعہ بلایا تھا جو فراز اور فیض پر بھی ان کی کتابیں ہیں، میرے دوست ہیں، تو ہم تو وہاں سے ہی قدردان ہیں نسرین سید صاحبہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا بہت سنا، کانٹوں میں تو مت گھسیٹے، بہت سنا۔ اور ریاض ساگر صاحب انڈیا سے ہیں، اور بہت اچھا کلام فراز کی زمین، جو ان کا یہ میری پسندیدہ غزل ہے۔ فراز صاحب جو کہ میرے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور آخری ملاقات ہماری نیو یارک میں ہوئی کھانے پر، اب 2-4 دوست تھے تو جی ہینگ ہو گیا پھر سے۔ تو یہ بس ابھی آج کل یہ پاکستان میں ہے نا، پاکستان میں تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہے۔ اچھا اچھا جی کوئی نہیں، ابھی ہو جائے گا دوبارہ سے۔ جی آگے جی میں عرض کر رہا تھا وہ کچھ نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو یہ سب دوست، جی ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فراز صاحب کی پسندیدہ غزل تھی، اور وہ خود اکثر سناتے تھے۔ جی اچھا ان کی زبانی بہت سنی ہے، یہ تو صحیح بات ہے، اکثر وہ یہ غزل کہہ سناتے تھے۔ جی انہوں نے فرمایا کہ مجھ فقیر کی کہ 32 بکس آلریڈی دے آر پبلشڈ، یہ میرے پیچھے یہ کتابیں ہیں ماشاء اللہ۔ جی ہاں، تو بہرحال میں ایک غزل دیکھ رہا تھا، جب آپ نے یہ غزل سنائی فراز کے، تو یہ میری کتاب جو اسی سال چھپی ہے، روزنے دیوار زندہ، یہ آپ کے سامنے یہ جناب، بے شک بے شک، جی ہاں 37 زبانوں میں جی، ان 7 لینگویجز، ماشاء اللہ۔ جب آپ نے وہ سنائی تو میرا بھی دل کیا کہ اس میں ایک غزل فراز صاحب کی بہن، تو میں نے کہا چلے آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں۔ فراز کی کہ شہر جلتا ہو تو تجھ کر، شہر جلتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون۔ شہر جلتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون۔ اس میں لکھی تھی کہ چشم پورنم سے جو ٹپکے وہ گوہر دیکھے گا کون۔ چشم پورنم سے جو ٹپکے وہ گوہر دیکھے گا کون، اور قتیل جبر کو اب دار پر دیکھے گا کون۔ کیا بات ہے، اور قتیل جبر کو اب دار پر دیکھے گا کون دیکھے گر تیرا دعائے نیم شب، کون دیکھے گا اثر تیرا دعائے نیم شب، جہاں کنی کا جب یہ عالم ہو اثر دیکھے گا کون۔ کیا بات ہے، جہاں کنی کا جب یہ عالم ہو اثر دیکھے گا کون۔ سبحان اللہ۔ جہاں کنی کا جب یہ عالم ہو اثر دیکھے گا کون۔ اور دیکھتے ہیں سب تیرے دستے ستم کے معجزے، سب تیرے دستے ستم کے دیکھتے ہیں سب تیرے دستے ستم کے معجزے، کشتگان عشق کے زخم جگر دیکھے گا کون۔ کیا کشتگان عشق کے زخم جگر دیکھے گا کون۔ کیا کہنے، جس طرف وہ رشک میں ہے سب ادھر ہیں دیکھتے،
کیا کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. سب ادھر ہیں جس دیکھتے، طرف وہ رش کے میں ہے سب ادھر ہیں دیکھتے، اس طرف ایک خستہ جاں ہے اس اب طرف ادھر دیکھے گا اب کون. ادھر دیکھیے گا. اس طرف واہ واہ واہ، اس طرف ایک خستہ جہاں ہے. کیا کہنا ہے. ساگر بھائی، کہ کیا جس کہنا ہے، طرف بہت وہ خوب. رش کے میں ہے سب ادھر ہیں دیکھتے، واہ اس طرف ایک خستہ جاں ہے اب ادھر دیکھے گا کون. بہت خوب. بہت عمدہ، بہت لالائے لالائے صحرا کی صورت، لالائے صحرا کی صورت ہے قبائے عاشقاں. واہ واہ لالائے صحرا کی صورت ہے قبائے عاشقاں، یہ لباس خونفشان دل مگر دیکھے گا کون. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، بہت خوب. کیا کہنے، بہت خوب. کیا کہنے جی، کیا کہنے. مقرر بہت خوبصورت شعر ہے. لازوال کلام ہے. پھر سے پڑھیے پلیز، پھر سے پڑھیے. تھوڑا پرابلم ہو گیا نیٹ کا، آتا جاتا رہ رہا. انشاءاللہ. جی جی جڑ جائیں گے. اتنی خوبصورت شاعری ماشاءاللہ، بہت بہت زبردست. جی جی بہت اچھا مشاعرہ ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ. بہت شاندار پروگرام. اور میں ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں. بہت ان کا شکریہ ناظرین کا بھی. اور واقعی میں بھی دیکھ رہا ہوں آج جو مشاعرہ ہوا ہے، محل اس سے پہلے جتنے بھی میں نے کرائے ہیں سب سے شاندار مشاعرہ آج ہوا ہے. بہت شاعری بھی سننے کو ملی ہے. جی جی آ رہی آواز آپ کی. جی آ گئی آ گئی. فون پہ دے دیں. جی 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 بات کریں جی. مسئلہ ہے اگر ویڈیو آف کر کے آئے تو شاید ہاں کیا بنے بات جب بات بنائے نہ بنے. بے شک. ہاں ویڈیو آف کر کے دیکھیے. ہاں ویڈیو آف کر کے ذرا کم لوڈ پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو پھر شاید کر لیں گے تو ایٹ لیسٹ آواز تو آ جائے نا ہمیں، ہم سن لیں. بس ان کا کلام سننے کا جو ہے وہ تو اور بھی بہت سی مجبوریاں ہیں، جی بہت سی دشواریاں ہیں. بس انٹرنیٹ کا یہ پرابلم تھا. نہیں آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. آپ کنٹینیو کریں. تصویر ارشاد فرمائیے. ایک دن کی بات ہوتی تو ہمیں کچھ غم نہ تھا، شہر میں یہ بکھری لاشیں عمر بھر دیکھے گا کون. ایک دن کی، یہ آج کل ہمارے حالات ہیں، ایک دن کی بات ہوتی تو ہمیں کچھ غم نہ تھا، شہر میں یہ بکھری لاشیں عمر بھر دیکھے گا کون. ہم تو ٹھہرے شب گزیدہ جعفری صاحب مگر، ہم تو ٹھہرے شب گزیدہ جعفری صاحب مگر اے شب یلدائے ظلمت اب سحر دیکھے گا کون. سحر دیکھے گا کون. اب سحر دیکھے گا کون. آپ کو جی جی یہ جناب آپ کو تازہ غزل 2-4 دن کی سناتا ہوں. جی جی ارشاد. اب دست تہی دست دعا ہے کہ نہیں ہے، اب دست تہی دست دعا ہے کہ نہیں ہے، اس سوچ میں گم ہوں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ارے واہ 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 کیا کہنا ہے. واہ واہ. بہت عمدہ. کیا کہنے. اب دست تہی اب دست تہی دست دعا ہے کہ نہیں ہے، واہ واہ. اس سوچ میں گم ہوں کہ خدا ہے کہ نہیں. جب زلف جس زلف کے سائے میں ملی ہم کو امان تھی، جس زلف کے سائے میں ملی ہم کو امان تھی، شانوں پہ وہی زلف دوتا ہے کہ نہیں ہے، شانوں پہ وہی زلف دوتا ہے کہ نہیں. کیا کہنے. کیا کہنے.
منصف و جہاں خود ہی شریک صف قاتل. واہ منصف وہ جہاں خود ہی شریک صف شریک قاتل. مجرم کے لیے حکم سزا ہے کہ نہیں ہے. منصف و جہاں خود ہی شریک صف قاتل. کیا مجرم کے لیے حکم سزا ہے کہ نہیں ہے. کیا کہنے. ہر شخص کی گردن پہ ہے ایک تیغ جفا کش. واہ ہر شخص کی گردن پہ ہے ایک تیغ جفا کش. گردن پہ میری تیغ جفا ہے کہ نہیں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ. گردن پہ ہے تیغ جفا کش. کیا سہولت سے کہا ہے. واہ 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 واہ. میری گردن پہ میری تیغ جفا ہے کہ نہیں ہے. بہت درمان محبت نہ ملا چارہ گروں سے. درمان محبت نہ ملا چارہ گروں سے. بیماری دل کی بھی دوا ہے کہ نہیں ہے. درمان محبت نہ ملا چارہ گروں سے. بیماری دل کی بھی دوا ہے کہ نہیں ہے. یہ فرمائیں کیوں دار پہ کھینچے گئے بے جرم خطا لوگ. کیوں دار پہ کھینچے گئے بے جرم خطا لوگ. ان کی جو خطا ہے وہ خطا ہے کہ نہیں ہے. کیا کہنے. کیوں میں صاحب بات کر دوں. دی آئیڈیز آف بھٹو میری کتاب ہے جو بنظیر صاحب نے لکھوائی ہے. دباچہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں وائزر رہا. یہ شعر ادھر جاتا ہے جب ہمارے ضیاء الحق نے ماشاء اللہ نے کیا. کیوں دار پہ کھینچے گئے بے جرم خطا لوگ. ان کی خطا ہے وہ خطا ہے کہ نہیں ہے. ان کی جو خطا ہے وہ خطا ہے کہ نہیں ہے. کیا جعفری تجھ کو ہے خبر رسم جہاں کی. جعفری تجھ کو ہے خبر رسم جہاں کی. یہ عہد تیرا عہد وفا ہے کہ نہیں ہے. یہ عہد تیرا عہد وفا ہے کہ نہیں ہے. اب دستے تہی اب دستے تہی دستے دعا ہے کہ نہیں. کیا کہنے. کیا آپ کو ایک پرانی غزل ایک تازہ غزل سنائی. مزہ آ گیا مزہ آ گیا. ایک اور عنایت کریں. کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت محبت کی بات ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو یو آل. سر ایک اور غزل عنایت کریں آخر میں. جی تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا کلام سننے کو مل رہا ہے. مشاعرے کا وقار بلند ہو رہا ہے. جی بے شک. محبت بڑی محبت. اچھا پھر میں آپ کو ون آف مائی بک جبر مسلسل. جی تو جبر مسلسل جو ہے یہ کوئی 2-3 سال پہلے چھپی تھی. جی اس کو غزل سنا دیتا ہوں جو لمبی بحر طویل میں ہے. جی اٹھی ہے کیسی یہ ہوک دل سے نوائے حرف دعا سے پہلے. اٹھی ہے کیسی یہ ہوک دل سے نوائے حرف دعا سے پہلے. سزا مختصر نے یہ دی ہے کیسی دل غم زدہ کی خطا سے پہلے. مقرر دوسرا. اٹھی ہے کیسی یہ ہوک دل سے نوائے حرف دعا سے پہلے. سزا مختصر نے یہ دی ہے کیسی ہمیں دل غم زدہ کی خطا سے پہلے. چمن میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کی. چمن میں آیا ہے کون گلچین ہر ایک شاخ چمن ہے لرزاں. چمن میں آیا ہے کون گلچین ہر ایک شاخ چمن ہے لرزاں. چلی یہ کیسی ہوائے سر سر خرام باد سوا سے پہلے. چلی ہے کیسی خرام باد سبا سے پہلے. بساط دنیا یہیں سجے گی
बिसात दुनिया यही यही सजेगी, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह बिसात दुनिया यहीं सजेगी, यहीं पर यहीं पे रोजे हिसाब होगा, यहीं पे रोजे हिसाब यहीं से उठेगा शोर महशर तुलुए सुबह जज़ा से पहले। क्या कहना है, वाह 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 वाह। वाह वाह, बहुत खूब। ये अंसर साहब शेर आपके लिए है। बिसात दुनिया यहीं सजेगी, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। यहीं से उठेगा शोर महशर वाह, तुलुए सुबह जज़ा से पहले। बहुत क्या कहना है, क्या कहना है, वाह वाह। सितमगरों से कोई ये कह दे सितमगरी से वो बाज आए। क्या मिसरा है, वाह वाह। सितमगरों से कोई ये कह दे सितमगरी से वो बाज आए। जमाना करवट बदल रहा है, बदल वो जाए सदा से पहले। क्या कहना है, क्या वार्निंग है, बहुत अच्छे। सितमगरों से कोई ये कह दे बदल वो जाए, सितमगरों से कोई ये कह दे सितमगरी से वो बाज आए। क्या कहने, क्या कहने, बहुत वाह जी वाह, क्या शानदार काम है। जमाना करवट बदल रहा है, वाह, बहुत खूब। यहीं पे हिसाब होगा, मुकर्रर कीजिए अगर हो सके तो। जी फिर इनका प्रॉब्लम हो गया है का, तो पाकिस्तान में ज्यादा क्राइसिस है। म्यूट उन्होंने खुद किया या आपने किया? नहीं म्यूट हुए हुए हैं, म्यूट हो रहे, म्यूट हो गया। आप खोल दो, हो गया, खुल गया। शेर में जी नई रुते हैं नए हैं तायर, नई रुते हैं नए हैं तायर, मिजाज गुलशन भी आतिशी है, गुलशन भी आतिशी है। कहीं ना गुलशन ही जल बुझे अब तुम्हारी रस्में जफा से पहले। वाह 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 वाह। क्या कहना है, गुलशन ही जल बुझे अब तुम्हारी रस्में जफा से पहले। हथेलियों पर सरों को रख कर बढ़े चलो सूए राह मक्तल। हथेलियों पर सरों को रख कर बढ़े चलो सूए राह मक्तल। वाह। चिराग अश्के मियाँ जलालो खराम बादे कज़ा से पहले। वाह 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 वाह। चिराग अश्के मियाँ जलालो खराम बादे कज़ा से पहले। वाला ये मैंने आपको जब बड़ा शुक्रिया जी। वैसे भी आज तो बड़े अच्छे दोस्तों से मुलाकात होगी। तवील बहर में आसान नहीं है, तवील बहर में ऐसी क्या खूबसूरत मज़ामीन भी बांधे हैं, माशाल्लाह। एक खास पस मंजर में कही गई है, तो उसको अगर जहन में रखें तो फिर आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब आपका और बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया और नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो लाइव हमने ये प्रोग्राम पेश किया है उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल से। और अपना जो लोग इनको लाइव अभी नहीं देख सके प्रोग्राम हमारा, और हम अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएंगे तो हम उसका जो है ना लिंक आप मेरे उस पर फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो और आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम ये सिलसिला आगे इसी तरह चलाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़, और आप सब मेहमानों का भी शुक्रिया और खुदा हाफिज़।